Praise the Lord. Hallelujah. We have come this evening to praise His name and glorify His name from New Life Fellowship. We are glad to be in this presence and we see this glorify His name with each one and each one of the families. I pray to God that this evening should be a wonderful evening to each one of us. एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। We praise His name. I love you, Lord. We love you, Lord. It's Jesus. I love you, Lord, for your mercy never fails. All my days I've been held in your hand. The moment that I wake up, I lift my hand. I will sing of goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails. All my days I've been held in your hand. The moment that I wake up until I lay my head, I will sing of goodness of God. All my life I've been faithful, Jesus. All my life I've been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have taught me to fire in the darkness night. You were close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life I've been faithful. All my life I've been so good. With every breath that I am, I will sing the goodness of God. I'm gonna sing of goodness of God. I'm gonna sing of goodness.
नई सामत मिली यीशु 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 देना मुझे तेरे प्यार पे है खुदा क्योंकि उस पर तूने मेरे पापों को लिया तेरे वचनों ने दी मेरे मार्ग पे रोशनी तेरे वायदों से मुझे नई सामत मिली यीशु 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 यीशु
ले अपना जीवन उसे दे दे अब उससे तू आशीष ले अपना जीवन उसे दे दे अब अपना क्रूस उठा ले तू या कह दे उससे प्यार नहीं जो कुछ ला गया तेरी खातिर क्या वो ही तेरा दिलदार नहीं या यीशु को अपना ले तू या कह दे वो तेरे प्यार नहीं जो कुछ ला गया तेरी खातिर क्या वो ही तेरा दिलदार नहीं या यीशु को अपना ले तू Take joy, my King. Hear what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Work inside of me. Oh, welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Work inside of me. You're the living waters, never drying fountain, comforter and counselor.
inside of me. We praise His name, Jesus' name. We follow His gracious anointing. I can feel the presence this evening right now. And I pray that today's Sunday is a day with all the salvation, the glory, the anointing to flow in each body's house. And each people can be released from all the problems and sickness and disease. I pray, Father, I don't know what I'm speaking this evening, but you have given me this word to speak. God, whatever I sang, whatever I did, this is your glory and your honor. And I pray you'll bring me back again with the same spirit, same acknowledgement, with the same strength, Father. Father, I thank you for everything, God, this evening, which you have given me, and will give us every single time, God. Yes, Jesus, what should I ask you? I just commit this prayer to your hand, Father, and I commit every problems in your feet, God. We ask His name. Amen. हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, बोले हालेलुया। क्या आज हम परमेश्वर के लिए उत्साहित हैं? क्या आज हम परमेश्वर के लिए आनंदित हैं? बाइबल कहती है कि परमेश्वर हर दिन मसीहों के जीवन में जो उन पर विश्वास करते हैं उनके जीवन को अपने आनंद से भरता है। बोलो हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हमारे बीच में हमारे बड़े भाई रवि सिलेस्टर भैया जो है, इन्होंने आज बहुत ही अच्छा वर्शिप को लीड किया। यहाँ पर सिलेस्टर भैया जो है वर्शिप को बहुत ही अच्छा लीड किया। यहाँ पर जब वो यहाँ पर लीड कर रहे थे, सच में पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हम यहाँ पर महसूस कर रहे थे। मेरे प्रियो, आज हम इस सेशन में परमेश्वर के वचन से आपसे बात तो करेंगे ही करेंगे, साथ में हम ये भी चाहते हैं कि आज हम आपके लिए विशेष प्रार्थनाएं भी करें। यदि ऐसे कोई है आपके पास जो आज इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप प्रार्थना पूर्वक बैठे। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर कार्य करने जा रहा है। पवित्र आत्मा आपको आज बंधनों से आजाद करने जा रहा है। मेरे प्रिय बहन और मेरे भाई, आज परमेश्वर का जीवित आत्मा, आज परमेश्वर का जिंदा वचन आपके जीवन को छुटकारा से भरने वाला है। क्या आप विश्वास करते हैं? यदि आप विश्वास करते हैं तो एक बार कमेंट में लिखिएगा हालेलुया, प्रेज गॉड जीसस, हालेलुया। आइए इससे पहले कि हम वचन में जाएं, एक छोटा सा हम प्रेयर करेंगे, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर खुदावन, क्योंकि तू राजा का राजा है प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु इस वक्त इस लाइव सेशन में खुदा बाप जितने आज न्यू लाइफ फेलोशिप के साथ जुड़ रहे हैं परमेश्वर महाराजा, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा बाप आपके नाम से परमेश्वर महाराजा, पवित्र आत्मा की सामत प्रभु जी आज एक एक व्यक्ति के कानों को खोल दे परमेश्वर खुदा राजा, ताकि प्रभु जी आपका वचन जो दोधारी तलवार है प्रभु जी, और एक के जीवन को उनके गुदे गुदे काट को काटने पाए, वेदने पाए, आर पार करने पाए परमेश्वर खुदा। हालेलुया। ओ प्रभु जी, जो बंधनों में है वो आजाद हो प्रभु जी, जो बीमारी में है वो आजाद हो परमेश्वर खुदा। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर खुदावन, हमारे जीवनों के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे कुटुंब के ऊपर प्रभु जी अब्बा आपकी उस अगुपे आशीष को मांगते परमेश्वर खुदावन, धन्यवाद करते हैं। सारी आदर में हम आपको देते हैं। इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जब मैं सोच रहा था इस बार कि परमेश्वर बहुत दिन हो गया, इस बार मैं फिर से आपके वचन को लेकर के हमारे पेज के ऊपर मैं आऊंगा, और जब मैं सोच विचार कर रहा था इसके विषय में कि प्रभु हम आज क्या आपके लोगों के बीच में लेकर के आएंगे,
क्योंकि आज जहां भी हम देखते हैं कलीसियाओं के बीच में प्रचार तो बहुत जगहों पर हो रहा है, लेकिन जो मेन मोटिवेशन है कलीसिया का मतलब होता है एकलीसिया, मतलब इस संसार के झुंड से एक अलग किया हुआ एक समुदाय, एक समूह जिसको प्रभु यीशु मसीह ने अलग किया है। लेकिन आज कलीसिया के अंदर में ही चर्चिस के अंदर में ही, मैं अन्य जातियों के विषय बात नहीं करना चाहता, लेकिन कलीसिया के अंदर में आज हम संसार को किस तरह से मिक्सअप कर रहे हैं वहां पर। मेरा प्रभु यीशु मसीह जब आज से 2000 साल पहले इस धरती पर आया था, उसका केवल मात्र एक लक्ष्य, एक उद्देश्य था कि वो हमें अनंत काल जीवन को देना चाहता था। उसने अपने आप को इस संसार में इसलिए बलिदान किया क्योंकि वो चाहता था कि कोई भी आत्मा नाश न हो, परंतु हर एक को मन फिराव का अवसर मिलने पाए। हालेलुया। आज जब मैं इस वचन को तैयार कर रहा था कि प्रभु मेरा जो टॉपिक है वो है मिस्र में आराधना, वर्शिप इन इजिप्ट। आप सभी जानते हैं मिस्र एक ऐसा स्थान को दर्शाता है जहां पर जादू टोना ज्यादा होता था, जहां पर आइडियोलॉजी को ज्यादा ध्यान दिया जाता था। उस स्थान में आप सभी जानते हैं निर्गमन की किताब में लिखा है, जब परमेश्वर अपने लोगों को वहां से बंधुआई से आजाद करना चाहता है, तब परमेश्वर अपने एक सेवक जिसका नाम मोसेस है, मूसा है, उसको खड़ा करता है और उसको कहता है जा और जाके फिरौन के पास ये कहना, और वो तब जब तू कहेगा तो मेरे लोगों को वो तेरे साथ में जाने देगा। एक वचन को हम निकाल करके पढ़ते हैं, जल्दी से निकालेंगे हम उस वचन को। निर्गमन की किताब उसका 7 अध्याय और उसका 16 पद हमें बाइबल में क्या बताती है। निर्गमन की किताब उसका 7 अध्याय और 16 पद हमें क्या बताती है बाइबल में। और उससे इस प्रकार कहना, और परमेश्वर मूसा से कहता है कि तू फिरौन से जाकर इस प्रकार कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह कहने के लिए पास भेजा है, मुझे यह कहने के लिए तेरे पास में भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करें, जिससे वे जंगल में, यहाँ पर ट्रांसलेशन में लिखा है कि जिससे वे जंगल में, लेकिन एक्चुअल उसका ट्रांसलेट होगा डेजर्ट, निर्जन प्रदेश में जाकर मेरे लिए क्या करे, आराधना करने पाए, उपवास करने पाए, बलिदान को चढ़ाने पाए। हालेलुया। एक वचन को और निकाल कर पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय 24 पद हमें क्या कहता है। यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 24 पद में क्या लिखा है। परमेश्वर आत्मा है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि, और यह अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से उस परमेश्वर की आराधना करें। मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने जब मूसा को बोला तुझे जाना है और जाकर के फिरौन को कहना है कि अब बहुत हो चुका, बहुत तूने उन लोगों को बंधुआई में रख लिया, अब उनकी आजादी का समय आ गया है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यह चाहता है कि वो अपने लोगों को आजाद करे, ताकि उनकी लोग निकल कर वहां से, मिस्र से निकल कर परमेश्वर के लिए बलिदान को चढ़ाए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर अगर आप एक बात को गौर कीजिएगा, परमेश्वर उनको कहता है मूसा को कि मेरे लोगों को तू जब वहां से निकालेगा तो उनको बलिदान कहां पर चढ़ाना है, निर्जन प्रदेश में। जंगल करके ट्रांसलेट, लेकिन वहां पर सही ट्रांसलेट होगा निर्जन प्रदेश, डेजर्ट। आज मसीही लोग, हम लोग अपने आप को एक कंफर्टेबल जोन में बना करके हमने रख लिया है। हालेलुया। मैं सोच रहा था प्रभु, जब वो लोग मिस्र में थे, जब वहां पर वो खाते पीते सब कुछ कर रहे थे, भले ही वो गुलाम थे, लेकिन उनको कुछ खाने को मिलता था, उनको अच्छा फूड मिलता था, अच्छी चीजें वहां पर उनको मिलती थी। वो गुलामी कर रहे थे, लेकिन कम से कम खा भी तो रहे थे।
लेकिन आपने उनको वहां से निकाला और आप निकाल करके कहते हैं कि इनको मैं डेजर्ट में लेकर के जाऊंगा और वहां पर उस मरुभूमि में, उस निर्जन प्रदेश में मेरे लोग मेरे लिए बलिदान को चढ़ाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज हम देखते हैं बहुत सारे जगहों पर, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन कभी कभी बहुत लगता है यहां पर कलीसियाओं में, चर्चेस के अंदर प्रचार किया जाता है खुदा बाप का कि आपको यीशु मसीह धनवान बनाएगा, आपको यीशु मसीह बहुत धनवान बनाएगा, आपके एटीएम्स के अंदर में पैसा आएगा, आपका 2 तल्ला मकान हो जाएगा। मेरे प्रियो, ये सारी चीजें तो बाद में है, सेकेंडरी थिंग्स है ये, लेकिन मेन जो परमेश्वर का मकसद था, जो खुदा बाप ने अपने आप को बलिदान किया था कि जब मैं अपने आप को बलिदान करूंगा तो जो मेरे लोग जो पापों में पड़े हुए हैं, जो शैतान के बंधन में पड़े हुए हैं, उनके लिए मैं अनंत काल के द्वार को खोल दूंगा। आज अगर हम किसी को बोलते हैं आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह क्यों आया इस जगत में, हाँ, वो हमें आशीष करने के लिए आया है, हमें चंगाई करने के लिए आया है, लेकिन कोई बहुत कम लोग हैं जो ऐसा कहते हैं कि वो हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए आया था। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आज कलीसियाओं को मॉडिफाई किया जा रहा है, संदेश को मोड़ तोड़ कर परोसा जा रहा है। यदि आज हम अपने कंफर्ट जोन को देखें, अगर कहीं पर आप आराधना कर रहे हैं, आप किसी चर्च में गए, वहां पर यदि आपको बहुत एसी का आदत है, मुझको मालूम है एसी का आदत जब हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम्स होता है वहां पर। कार में एसी, घर में एसी, चर्च में एसी, और यदि मान लीजिए वहां पर एसी बंद हो जाए, नहीं चले, खराब हो जाए, 1 सप्ताह 2 सप्ताह खराब हो जाए, आप बोलेंगे नहीं अभी चर्च का एसी खराब है, अभी हम घर से ही ऑनलाइन सर्विस कर लेंगे, कम से कम घर में मेरा एसी तो चल रहा है। हालेलुया। क्योंकि आपने अपने अंदर में कंफर्ट जोन को बना लिया है, एक आरामदायक जगह को आपने नियुक्त कर लिया अपने जीवन के अंदर में, और आप उस आरामदायक जगह को छोड़ना नहीं चाहते हैं, परंतु परमेश्वर आपके उस आरामदायक जगह को छुड़ाना चाहता है आपके जीवन के अंदर से। आप सोच रहे हैं कि आप इस जगह पर आशीष से लबानोर है, परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष किया, कैसे? मेरे पास एक कार है। परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष किया, कैसे? मेरे पास 2 मोबाइल फोन है। परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष किया, कैसे? मेरे पास एक अच्छा बाइक है। हालेलुया। हम परमेश्वर की आशीषों को अपने धन संपत्ति के साथ में तुलना करने लग जाते हैं, लेकिन रियल में परमेश्वर जो आशीष करता है आपके जीवन को, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक प्रभु के दास जब प्रचार कर रहा था, उन्होंने कहा था कि अंत के दिन में बाइबल में लिखा है, जो आगे है वो पीछे हो जाएगा और जो पीछे है वो आगे हो जाएगा। मैं बहुत दिन तक सोचता रहा कि परमेश्वर इस वचन का मतलब क्या है प्रभु जी। हम सभी जानते हैं 2000 साल पहले से बोला गया, आज 2000 साल हो गया कि खुदावंद यीशु मसीह आएगा, आएगा, आने वाला है। हम अपनी बात को छोड़ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बाइबल कहती है बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाने वाला है, बहुतों का विश्वास कमजोर हो जाने वाला है, बहुत से लोग टूट जाने वाले हैं, क्योंकि वो मूल सिद्धांत से हट चुके हैं, परमेश्वर के मूल सिद्धांत से हट चुके हैं। इसलिए उनके विश्वासों को शैतान कहीं ना कहीं चोट कर रहा है। यहां पर परमेश्वर ने कहा, इनको उस मिस्र से निकालो और उनको डेजर्ट में लेकर चलो, एक ऐसे स्थान में जहां ना जल है, जहां ना खाने का कोई व्यवस्था है, जहां पर ना कोई आरामदायक बिस्तर है। आप सोच कर देखिए इस चीज को, परमेश्वर ने क्यों इस्राएलियों को उस निर्जन प्रदेश में लेकर के जाकर कहा तुम्हें वहीं पर बलिदान चढ़ाना है, क्योंकि परमेश्वर खुदा बाप उनके जीवन में कुछ न कुछ सिखाना चाहता था। यदि जब मेरे जीवन में आशीष आती है तो मैं कहता हूँ, हे प्रभु तू महान है, हे प्रभु तू अच्छा है, हे प्रभु तू भला है। लेकिन जैसे ही परमेश्वर आपके जीवनों में परीक्षाओं को डालता है, परेशानियों को डालता है,
वैसे ही हम, जैसे ये लोग मिस्र में निकले और जब वो मार्ग में गए तो परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। अच्छा तो हम मिस्र में थे, वहां पर अच्छा भला हुआ, कम से कम मजदूरी करते थे, खाते तो थे वहां पे, क्यों तूने हमें यहाँ पर मरवाने के लिए लेकर के आ गया? हमारे जान के लाले पड़ गए यहाँ पर, हम क्या खाएंगे, हम कैसे पानी पिएंगे यहाँ पर? परमेश्वर को बुड़बुड़ा करके लोग कहने लगे। आज भी सेम वैसा ही कंडीशन कलीसियाओं के ऊपर में होता है मेरे प्रिय लोगों। परमेश्वर जब मुझे देता है तो मेरा प्रभु मेरे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही परमेश्वर हमें किसी परीक्षा में डालता है, हम कहते क्या प्रभु जी आपने मुझे क्यों, ये तेरी ओर से नहीं हो सकता, ये जरूर शैतान ने किया होगा। हम बहुत अच्छी तरीके से उस शैतान के ऊपर में सारी दोष को डाल देते हैं। मुझे एक दृष्टांत याद है, एक प्रभु के दास ने प्रचार किया था, बताया था, एक हलवाई अपने दुकान में कुछ बना रहा था। बनाते बनाते उसने कहा, जब वो बना रहा था तो शैतान का एक व्यक्ति के साथ में बातचीत होता है। वो व्यक्ति बोलता है कि जब कुछ होता है तो शैतान ने किया, जब कुछ हुआ तो ये काम शैतान ने किया। शैतान कहता है उसको, अरे भाई रुको रुको एक मिनट, हर बार मेरे ऊपर दोष मत डाल मेरे भाई, कभी कभी तुम अपने कारण से भी फंसते हो, मैं कुछ नहीं करता, मनुष्य अपनी लालसाओं के कारण से फंसता है वहां पर। वो बोलता है देखो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल को दिखाता हूँ। वो गया उस हलवाई की दुकान पे, जाने के बाद चीनी का जो चाशनी होता है उसको ऐसे करके लिया और ले जाकर के एक दीवार में लगा दिया। अब बोला बस मैंने सिर्फ ये चाशनी लगाई है और मैंने कुछ नहीं किया, अब तुम यहाँ पर देखना मजा। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, वो शैतान ने सिर्फ चाशनी को लगाया वहां पर, और जैसे वो उसने वहां पर चाशनी को लगाया दीवार में, एक छिपकली दूर से देख रही थी, वो चाशनी खाई नहीं, एक मक्खी वहां पर मंडराने लगी और उस चाशनी के ऊपर बैठ गई। अब ये छिपकली देखी, अरे वहां पर मक्खी बैठी है, ये तो मेरा अच्छा भोजन है। वो गई और जा करके वहां पर मक्खियों को खाने लगी। अब एक मक्खी से दो मक्खी, और जब दो मक्खी से तीन मक्खी, चार मक्खी हुई तो वहां पर छिपकलियां भी क्या हुई, भर गई। अब बगल में एक दर्जी का दुकान था और उसके पास एक बिल्ली थी। ध्यान से सुनिएगा, उस दर्जी के दुकान वाले के पास एक बिल्ली थी और वो बिल्ली वहां से देखने लगी, अरे वहां पर कुछ हलचल हो रहा है दीवार में दादा, छिपकलियां बहुत सारी आ गई है, मेरा पेट भी गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा है, अब मैं थोड़ा जा करके वहां पर खाऊंगी, अपने पेट को भरूंगी वहां पर जाकर के। पर वो थोड़ा दूर में है और बीच में कढ़ाई है, मैं कैसे खाऊं? थोड़ा देर वो बिल्ली भाई इंतजार कर रही है, सोच रही है कैसे उपाय लगाऊं, क्या करूं, लेकिन जब उपाय नहीं लगता है तब उस बिल्ली का सब्र जो धैर्य है वो टूट जाता है। वो वहीं से छलांग लगाती है उस दीवार के ऊपर में, एक छिपकली को पकड़ती है और चाशनी के कढ़ाई के ऊपर में गिरती है। वो चाशनी का कढ़ाई पूरा उलटता है, उस हलवाई का दुकान में तहस नहस हो जाता है। उसके बाद तो हलवाई पूरा गुस्सा से भर के लाल बबूला हो जाता है वहां पर। किसकी बिल्ली थी? वो बगल में जो दर्जी है उसकी बिल्ली थी। गया निकाल के चाशनी का बड़ा वाला चमचा निकाल के, लो लड़ाई शुरू दोनों में वहां पर। अब ये दोनों दर्जी और हलवाई लड़ते लड़ते इन्होंने अपने परिवार के लोगों को बुलाया, उन्होंने अपने परिवार के लोगों को बुलाया और वो झगड़ा एक दंगा में बदल गया वहां पर। हालेलुया, हालेलुया। छोटा सा काम उस शैतान ने किया, लेकिन मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा वहां पर जाकर के फंस गया। कभी कभी ऐसा ही होता है, परमेश्वर हमको परखता है, परमेश्वर हमें परखता है, परीक्षा में डालता है कि वो चाहता है देखना कि हम कितने उसके प्रति वफादार ईमानदार हैं वहां पर। हालेलुया। जब यहाँ पर परमेश्वर उनको डेजर्ट में लेकर के जाता है कि मैं उनको देखूंगा, मैं उनको देखूंगा कि वो कैसे वहां पर मेरे लिए बलिदान को चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते हैं। जब परमेश्वर को वहां से निकालता है और जब उनको डेजर्ट में लेकर के जाता है बलिदान चढ़ाने के लिए, मैं नेक्स्ट पॉइंट पर जाना चाहता हूँ। जल्दी से निकालिएगा मेरे सामने एक और वचन को, मत्ती की किताब उसका 4 में क्या कहता है। मत्ती की किताब उसका 4 अध्याय उसका 4 पद में क्या कहता है। आराधना का स्थान, जल्दी से। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है,
जीवित रहेगा। जीवित रहेगा। और कुछ परमेश्वर की आत्मा ने उसे डेजर्ट में लेकर के गया, ऐसा कुछ लिखा है वहां पर आगे पीछे। फिर परमेश्वर की आत्मा उसको निर्जन प्रदेश में लेकर के जाती है, कंगूरे पर खड़ा कर दिया। स्टार्टिंग से पढ़िए उसका 1 से। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। यस, यहाँ पर लिखा है आत्मा यीशु को जंगल, फिर यहाँ पर जंगल शब्द का उपयोग है, लेकिन इंग्लिश में आपको मिलेगा डेजर्ट। यीशु को आत्मा एक मरुभूमि में लेकर के जाता है ताकि वहां पर शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हो। यदि आप चाहते हैं अपने आत्मिक जीवन में ऊपर उठना, यदि आप चाहते हैं कि आप अपने आत्मिक जीवन में थोड़ा सा ऊपर उठे, आपकी परीक्षा होनी बहुत जरूरी है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। यदि एक बच्चा नर्सरी क्लास में पढ़ता है, आप जानते हैं उसका प्रमोशन तब तक नहीं होता जब तक वो परीक्षा में पास होकर नहीं जाता। ऐसा नहीं कि उसने परीक्षा को नहीं लिखा और उसको केजी में दे दिया गया, ऐसा नहीं होता है। जब तक वो परीक्षा नहीं लिखेगा तब तक उसको आगे की क्लास में प्रमोट नहीं किया जाता है। उसी प्रकार से बाइबल कहती है यदि हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो हम उसे अपने जीवन में एक आनंद का, एक हर्ष का बात हम समझे अपने जीवन के अंदर में। लेकिन कभी कभी लोग इन परीक्षाओं में हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं ये मेरे साथ में क्यों हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ दिन पहले ही मेरे जीवन में परमेश्वर ने परीक्षाओं को डाला। मैं भी अपने जीवन में हताश और निराश हो चुका था। मैं सोच रहा था कि ये परीक्षा मेरे जीवन में क्यों आया, क्यों मैं आज इस कंडीशंस में यहां पर हूं। लेकिन जब मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, जब मैं अपने आप को परमेश्वर के सामने और उंडेलना शुरू किया, तब मुझे मालूम पड़ा नहीं, ये परीक्षाएं हमें नीचा करने के लिए नहीं, परंतु ये परीक्षाएं हमारे जीवनों से हमें और ऊंचा ले जाने के लिए होती है। हालेलुया। यीशु को आत्मा डेजर्ट में, निर्जन प्रदेश में लेकर के गया। हालेलुया। यदि आपको उठना है, आपको परीक्षा देना है अपने जीवन के अंदर में, बिना परीक्षा का आप नहीं पार पाएंगे। वहां पर परमेश्वर जानता था कि इनको मैं जिस देश में लेकर के जाना चाहता हूं, जो कनान का देश है, जो मैंने इनके लिए निर्धारित किया है, वो मैं इनको यूं ही नहीं दे सकता। इनको परीक्षाओं से होकर जाना होगा, तब जाकर मैं उनको उस देश को दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। नो क्रॉन विदाउट क्रॉस। याद रखिएगा इस चीज को। आपको जीवन का मुकुट यदि चाहिए, आपको यीशु मसीह का सलीब उठाना ही पड़ेगा अपने जीवन के अंदर में। यदि आप सलीब नहीं उठाएंगे तो आपको वो जीवन का मुकुट आपके ऊपर परमेश्वर कभी नहीं दे सकता। हालेलुया, हालेलुया। मेरा सेकेंड पॉइंट ये है, जल्दी से निकाल करके पढ़ेंगे उसको। भजन संगीता उसका 51 का 17, जल्दी जल्दी। भजन संगीता की किताब उसका चैप्टर 51 वर्स 17। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। यस, बाइबल कहती है कि टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। योग्य बलिदान है। हालेलुया। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। लोग आपके परिस्थितियों में आपका मजाक उड़ाते हैं, लोग आपके परिस्थितियों में आपका ठट्ठा उड़ाते हैं। अरे देखा ना, बहुत प्रभु प्रभु करता था, बहुत आराधना करता था, आज इसके जीवन में परिस्थिति आई है, कैसे पड़ा है वहां पर। हालेलुया। लोग आपके अपने मित्र, आपके अपने कुटुंबी आपके ऊपर हंसेंगे, ठट्ठा करेंगे। अरे ये तो प्रभु प्रभु कहता था, आज इसकी परिस्थिति को देखो, ये कैसे पड़ा है लाचार यहाँ पर। कोई आपके ऊपर मरहम लगाने नहीं आएगा मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। लेकिन बाइबल कहती है कि टूटा हुआ मन मेरा परमेश्वर अपने समीप में आपके लिए सबसे उत्तम बलिदान समझकर अपने पास में ग्रहण करता है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है मेरी बहन, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है मेरे भाई। यदि तू परेशान है, यदि तेरा मन टूटा हुआ है, आज खुदा बाप तेरे करीब में है,
आज लोग तेरे करीब नहीं रहेंगे, लेकिन वो परमेश्वर तेरे करीब में रहने वाला खुदा है। हालेलुया। इसलिए परीक्षाओं में अपने आप को ऐसा ना समझना कि खुदा ने तुझे छोड़ दिया। खुदा ने तुझे परीक्षा इसलिए दिया है ताकि वो तुझसे प्रेम करता है और वो तुझे अपनी हथेली पर लेकर उस परीक्षाओं के पार लेकर जाना चाहता है। हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर महाराज। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है, जैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ प्रेम किया था। एक और वचन को पढ़ेंगे, रोमी उसका 12:1 हमें क्या कहता है, जल्दी से पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर खुदा रोमी उसका 12:1। धन्यवाद परमेश्वर, स्तुति करते राजाओं के राजा। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण मैं दिलाकर तुम्हें उस परम पिता परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाता हूँ। इसलिए दया को स्मरण दिलाता हूँ क्योंकि आज यदि तू स्थान पर खड़ा है, अपनी योग्यता के कारण नहीं, अपनी प्रबलता के कारण नहीं, अपने परिश्रम के कारण नहीं, अपनी मेहनत के कारण नहीं, परंतु परमेश्वर की दया के कारण। इसलिए पौलुस कहता है, मैं सबसे पहले तुम्हें परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाता हूँ। परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, विनती भी करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित सबसे पहला जीवित और पवित्र और दूसरा पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ और तीसरा परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। आपका बलिदान परमेश्वर दशवांश से खुश नहीं होता है। आपके जीवन में जीवित रहते हुए परमेश्वर आपको एक भावता हुआ बलिदान के रूप में चाहता है अपने करीब में। जैसे मैंने पहले ही कहा, टूटा हुआ मन परमेश्वर के सामने सबसे उत्तम बलिदान समझा जाता है। बाइबल कहती है कि वो आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी में समेट कर रखता है। वो ऐसा परमेश्वर है, वो अत्यंत प्रेमी परमेश्वर है। मुझे समझ में आता है, कभी कभी मेरी छोटी बेटी है और कभी कभी मैं अपनी बेटी को किसी गलत चीज में डांट दिया करता हूँ। अब माँ तो माँ होती है, आप जानते हैं, उसकी माँ के सामने खड़ी हो जाती है, क्यों मेरी बेटी को डांट दिए जी। कभी कभी मैं सोचता हूँ, अरे भाई, मैं उसके अच्छे के लिए तो उसे डांट रहा हूँ ताकि वो भविष्य में वो गलती को ना करे। मैं बोलता हूँ, अरे भाई, मैं भी तो उसका पिता हूँ, मुझको मालूम है क्यों उसे डांट रहा हूँ। अगर मैं डांट रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे प्यार नहीं करता। मेरे डांट में भी परमेश्वर ने उसके लिए प्रेम को रखा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यदि आपके जीवन में किसी डांट को लगाता है, किसी फटकार को लगाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि खुदा बाप ने आपको छोड़ दिया, परंतु ये मतलब है कि खुदा बाप निश्चय आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपके कुटुंब से एक बड़ी योजना को चाहता है। हालेलुया। खुदा आपके साथ में है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसलिए उसने इस्राएलियों को मिस्र से जब निकाला, सबसे पहला एग्जाम, डेजर्ट में तुम्हारा टेस्ट होगा भाई। डेजर्ट में जहाँ पानी नहीं मिलेगा, जहाँ खाना नहीं मिलेगा, वहां पे मैं तुम्हारा टेस्ट करूंगा। तो कितना परमेश्वर में परिपक्व हो, वहां पर तुम्हारा विश्वास कितना परमेश्वर में स्थिर है, मैं वहां पर तुमको टेस्ट करके देखूंगा। खुदा बाप इसीलिए उनको डेजर्ट में लेकर के जाता है। सेकंड पॉइंट के हम जाएंगे, जल्दी से पढ़ेंगे निकाल करके, निर्गमन की किताब उसका 8:25, जल्दी से पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब उसका 8 अध्याय उसका 25 पद हमें क्या कहती है। पहला था कि परमेश्वर आपको जीवन में परीक्षाओं को चाहता है, इसलिए उसने आपको मिस्र से निकाल कर आपको डेजर्ट में लेकर के गया। दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे जल्दी से। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान कर लो। अब मैं आपको बताता हूँ, डिटेल में ध्यान से समझिए इस बात को। यहाँ पर परमेश्वर इस्राएलियों को वहां से निकालना चाहता था, इसीलिए परमेश्वर ने वहां पर एक लीडर को नियुक्त किया, मोसेस को नियुक्त किया और कहा तुम्हें जाना है और फिरौन के पास ये बातों को रखना है वहां पर, और तब फिरौन वहां से तुमको जाने देगा। लेकिन फिरौन, बाइबल कहती है कि उसका मन कठोर होने लगा, और जब उसका मन कठोर होने लगा तो परमेश्वर ने फिरौन के उस भवन में, उसके राज्य में विपत्तियों को डालना शुरू किया। और जब परमेश्वर ने विपत्तियों को डाला
तब फिरौन जब घबराहट से होकर आता है और वो बोलता है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुमको जाने दूंगा, लेकिन सबसे पहला शर्त यह है तुम जाओगे, लेकिन फिर से पढ़िएगा उसको। 8:25। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। तुमको मैं जाने देता हूँ, लेकिन एक शर्त है, एक कंडीशन है, एक टर्म है वहाँ पर, तुमको मैं बलिदान चढ़ाने दूंगा, लेकिन कहाँ पर? इसी देश में। इसी देश में। हालेलुया। क्या परमेश्वर चाहता था कि मिस्र में उनके लोग बलिदान को चढ़ाए? क्या परमेश्वर चाहता था कि उनके लोग मिस्र में वहां पर रहे? परमेश्वर नहीं चाहता था। इसीलिए तभी तो परमेश्वर ने योजना को बनाया था कि मैं अपने लोगों को निकालूंगा और यहाँ से निकाल कर लेके जाऊंगा ताकि वो अलग होकर बलिदान को चढ़ाए। लेकिन यहाँ पर फिरौन कहता है रुक जा मेरे भाई, मैं तुमको बलिदान चढ़ाने का छूट दूंगा, लेकिन तुझे इसी देश में बलिदान चढ़ाना है। आपको मालूम मिस्र में परमेश्वर उनको क्यों निकालना चाहता था? क्योंकि मिस्र एक आइडियोलॉजी का, एक मूर्ति पूजा करने वाला स्थान था, एक बंधन वाला स्थान था, जहां पर जादू टोना तरह तरह का पाप, वहां पर शैतान की क्रियाएं होती थी और परमेश्वर वहां से उनको निकालना चाहता था। क्या यह संभव है कि खुदा बाप कह दे हाँ कोई यहीं पर रहकर आराधना कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी मुझे बहुत दुख लगता है जब प्रभु के सेवक सिखलाते हैं कोई बात नहीं, तुम चर्च भी आ सकते हो, तुम उस काम को भी कर सकते हो, तुम चर्च भी आ सकते हो, तुम ताबीज भी बांध सकते हो, तुम चर्च भी आ सकते हो, तुम फलाना फलाना काम भी कर सकते हो। मैं सोचता हूँ मेरा परमेश्वर इनके विवेक के अंदर अपनी बुद्धि को डाल। बाइबल कहती है परमेश्वर का मूर्ति के साथ में कोई भी नाता संबंध नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा समय हो रहा है, लेकिन मैं आज आपसे चाहूंगा कि आप जुड़े रहें। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्योंकि आज लिपा पोती का सुसमाचार बहुत तरीके से हो रहा है, लेकिन यदि आप छुटकारा चाहते हैं, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है मिस्र से निकालने के लिए। फिरौन कहता है यहीं पर रहकर चढ़ाओ ना बलिदान, क्या दिक्कत है? मैं तुमको सब कुछ दे दूंगा, तुम्हारे लिए वेदी बना दूंगा, तुम्हारे लिए मैं अच्छी चीजों को ला दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, यहीं पर बलिदान कर दो। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन को निकाल करके पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब, सॉरी यूहन्ना की किताब में दूसरा कुरिन्थी उसका 6 का 14 और 16 में क्या कहता है? दूसरा कुरिन्थी की किताब उसका 6 का 14 से 16 पद तक। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो। बाइबल कहती है अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल? क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का कोई मेल जोल नहीं है। या ज्योति और अंधकार की क्या संगति? या ज्योति और अंधकार का कोई संगति नहीं होता है। और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव? और मसीह का बलियाल के साथ कोई लगाव नहीं होता है। या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता? या विश्वासी के साथ अविश्वासी का कोई नाता नहीं है। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? और लास्ट में लिखा है मूर्ति के साथ जीवित परमेश्वर के मंदिर का कोई भी संबंध नहीं होता है। क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर क्योंकि हैं। हम तो परमेश्वर के जीवित मंदिर है, जीवित परमेश्वर के हम मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है। थैंक यू सिस्टर, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने उनको मिस्र में बलिदान को चढ़ाने का इजाजत नहीं दिया। एक वचन को और पढ़ेंगे हम, पहला कुरिन्थी की किताब उसका 3 का 16 में क्या कहता है? जल्दी जल्दी निकालेंगे। पहला कुरिन्थी की किताब उसका 3 का 16 में क्या कहता है? थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर कि हो? तुम जीवित परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता तुम है। में वास करता है। हालेलुया, बोले हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा मेरे भाई मेरे बहन
तुम में वास करता है। परमेश्वर ने अपने हाथों से इस मंदिर को अदन की वाटिका में बनाया था। इसे नाश ना करे। बाइबल कहती है जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, मेरा खुदा बाप उसके जीवन को नाश कर डालेगा। गॉड हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6:16। जल्दी पढ़ेंगे हम। थैंक यू लॉर्ड हालेलुया। परमेश्वर स्तुति करते हैं राजा के राजा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6:17। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो। इसीलिए प्रभु कहता है सबसे पहले उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। उसके बाद और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, और अशुद्ध वस्तु को ना छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हालेलुया। यदि आपने अशुद्ध वस्तु को छुआ है, यदि आपने परमेश्वर के स्थान पर किसी और को वहां पर बैठा करके रखा है, तो कहता है मेरा खुदा बाप इस सृष्टि का रचने वाला, सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला, क्योंकि आपने अशुद्ध वस्तु को छुआ है, इसलिए मेरा खुदा, मेरा दुल्हा खुदावन यीशु आपको छू नहीं सकता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर खुदावन आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर ने इस्राएलियों को उस मिस्र के अंदर बलिदान चढ़ाने का इजाजत नहीं दिया। हालेलुया। अब दूसरी बार आपने देखा, अब फिरौन आगे क्या बात को कहता है, हम थोड़ा उसको देखेंगे। वहां पर जल्दी से निकालेंगे निर्गमन की किताब उसका 8:28 हमें क्या कहता है। पहला बार बोला यहीं पर रहकर बलिदान चढ़ाओ। दूसरा बार में वो क्या कहता है, जरा हम देखेंगे इसको। निर्गमन की किताब उसका 8 अध्याय उसका 28 पद। फिरौन ने कहा, उसके बाद दोबारा जब ये लोग कुछ काम को करता है, जब मूसा फिर से वहां पर विपत्तियों को डालता है, फिर से फिरौन उनको बुलाता है, ठीक है, हम पहला बार बोले थे आप यहाँ पर बलिदान चढ़ा लीजिए, आप लोग सारे यहाँ पर बलिदान चढ़ाइए, लेकिन मैं अब आपको कहता हूँ, फिरौन ने कहा, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा, मैं तुमको अब निर्जन प्रदेश में उस डेजर्ट में जाने दूंगा, कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, केवल बहुत दूर न जाना। हाँ, लेकिन यहाँ पर अब एक शर्त उसने रखा कि केवल अब बहुत दूर ना जाना। हालेलुया। बहुत दूर ना जाना, सामने में रहना। भैया दूर जाओगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, थोड़ा प्रॉब्लम्स होगा वहां पर। हालेलुया। हालेलुया। शैतान कभी भी नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर के लिए एकदम दूर हो, परमेश्वर के साथ चले जाए और शैतान से आपका रिश्ता जो है वो दूर हो जाए। वो चाहता है थोड़ा सा करीब में रहे, ताकि मैं इसको कभी जब जरूरत पड़े तो अपने पास में बुला सकूं। हालेलुया। मैं बार बार अपनी कलीसिया में कहता हूँ, यदि आपने देखा है रिमोट, आजकल रिमोट का जमाना है, आप घर में बैठे हैं, आपके पास रिमोट कंट्रोल है, टीवी घर पे लगा हुआ है, उसका एक रेंज होता है रिमोट का, उसमें जो मैग्नेट होता है रिमोट का, मैग्नेटिक, उसका एक रेंज होता है। आप अपने घर पे बैठे हैं और टीवी आपके वहां पर है, आप यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, चैनल चेंज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा दूर जाकर देखते, थोड़ा और पीछे जाएंगे, फिर भी चैनल चेंज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, अच्छी बात है। चलो थोड़ा और पीछे जाते हैं, अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है चैनल चेंज होने में, लेकिन काम चल रहा है। और थोड़ा सा पीछे जाएंगे, अब तो काम नहीं कर रहा ये रिमोट वहां पर। हालेलुया। शैतान को मालूम है जो मैग्नेट उसने आपके अंदर में रखा है, यदि आप परमेश्वर के पास बहुत करीब चले गए और शैतान से आप दूर हो गए, तो जो मैग्नेट आपके अंदर में है वो काम करना बंद कर देगा। इसलिए वो चाहता है कि आप थोड़ा सा नजदीकी बनाकर रखिए, 50-50 वाला रिलेशन रखिए, कभी परमेश्वर के पास, कभी संसार में। मैंने आज अपनी कलीसिया में कहा, चर्च में आते हैं तो बहुत ही बड़ा स्वर्गदूत बन जाते हैं, और जब घर में जाते हैं तो बहुत बड़ा भूत बन जाते हैं। हालेलुया। हमारा कैरेक्टर दोहरा हो जाता है वहां पर। इस दोहरेपन को परमेश्वर नहीं चाहता है। खुदा बाप कहता है या तो तू ठंडा हो जा या गर्म हो जा, बीच में रहेगा भैया, हम उल्टी करके तुमको बाहर निकाल देंगे। और उल्टी की चीज बहुत गंदी मानी जाती है। हालेलुया। वोमिटिंग को दोबारा जल्दी कोई खाता नहीं, कुत्ता को छोड़ करके। हालेलुया। हालेलुया। शैतान इसीलिए आपको करीब में रखना चाहता है, थोड़ा सा ढील दिया है,
हम जब छोटा में गुड्डी उड़ाते थे, लटाई था हमारे हाथ में, गुड्डी उड़ाते थे तो हमारा एक काम होता था, जब गुड्डी को उड़ाएंगे थोड़ा सा ढील देंगे उसको ताकि वो हवा में जाएगा, फिर से उसको टांग के सामने लाएंगे, फिर थोड़ा ढील देंगे, फिर टांग के सामने लाएंगे। हालेलुया। शैतान भी वैसे ही करना चाहता है। चलो तुमको थोड़ा प्रभु प्रभु करने देते हैं, थोड़ा सा छोड़ दिए, फिर जाओ 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 जाओ। आप तुमको फिर सामने लाना होगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सामने आ जाओ, फिर छोड़ दिए, जाओ जाओ प्रभु प्रभु करो, फिर सामने टांग के ला दिया, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। हालेलुया। आज यदि आपके पास ऐसा परिस्थिति है, यदि आज आप ऐसा ही कर रहे हो, सावधान, परमेश्वर कहता है बी अलर्ट। वो आपको उल्टी कर देगा, निकाल कर फेंक देगा बाहर, या तो गर्म या तो ठंडा। इसलिए फिरौन कहता है जाने दूंगा भैया तुमको निर्जन प्रदेश में, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना, 3-4 किलोमीटर के अंदर में ही रहना। ऐसा नहीं कि तुम 100 किलोमीटर चल जाओ तो तुमको बुलाने में बहुत दिक्कत होगा, मेरा रथ भेजने पड़ेगा, क्या क्या करने पड़ेगा वहां पर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे हम, यूहन्ना की किताब उसका 15-19, जल्दी से पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब उसका 15-19। यदि तुम संसार के होते, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, तो संसार अपनों से प्रेम करता, परंतु इस संसार की तुम संसार से नहीं, परंतु तुम इस संसार के नहीं, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। इसीलिए संसार तुमसे बैर करता है। और एक वचन को लूका उसका 5-4, जल्दी से कोई भी निकाले तो पढ़िए, 5 का। लूका उसका 5-4। जब वह बातें कर चुका, जब यीशु मसीह के साथ में चेले बातें कर चुके, तो शिमोन से कहा, तब यीशु मसीह ने शिमोन से कहा गहरे में ले चल, गहराई में ले चल और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल को डाल। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, आप सभी इस दृष्टांत के बारे में जानते हैं। खुदा बाप ने पतरस सिमोन को कहा यदि तू मछली पकड़ना चाहता है तो गहराई में चल, छिछले पानी में तुझको कुछ नहीं मिलने वाला। गहराई में जब तू चलेगा तुझको बड़ी बड़ी मछलियां, अच्छी अच्छी मछलियां वहां पर तुझको मिलेंगी। आज परमेश्वर भी आपका रिश्ता अपने साथ में एक गहरा संबंध बनाना चाहता है, एक डीप रिलेशनशिप परमेश्वर आपके साथ में बनाना चाहता है। लेकिन आज हम अपने परमेश्वर के साथ वैसा डीप रिलेशनशिप नहीं बना पाते हैं। इसी कारण से हम छिछला पानी में उछलते रहते हैं। आपको मालूम है, एक कविता मैंने बचपन में पढ़ा था, अदरत गगरा छलकत जाए। जो आधा भरा हुआ पानी होता है, इसमें जार में मटका में आधा पानी रहता है, वो ज्यादा छलकता है, वो ज्यादा छल छल करता है। और जब वो भर जाएगा लबालब तो वो ज्यादा छल छल नहीं करता है। आज मसीहों का हालत भी ऐसा ही है। वो आधा है अपने जीवन में और वो सोचते कि हम तो पा चुके, परिपूर्ण हो चुके, हमें सब कुछ मिल गया, अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया हालेलुया। खुदा बाप कहता है आपको उसके साथ में एक गहरा संबंध को बनाना है। परमेश्वर के साथ में शैतान के साथ दूरी को बनाकर दूर हो जाइए और परमेश्वर के साथ में जुड़ जाइए गहराई के साथ में। वो खुदा आपसे बहुत प्यार करता है। फिरौन ने कहा दूर मत जाना, सामने में रहना। आगे देखते हैं फिरौन क्या कहता है, जल्दी से। निर्गमन उसका 10-11, निर्गमन की किताब उसका 10-11, जल्दी से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। हाँ, तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो, तुम यही तो चाहते थे। बस, थैंक यू। उसके बाद फिरौन कहता है, फिर जब वो लोग कुछ विपत्ति को डालता है वहां परमेश्वर के द्वारा, फिर फिरौन थक हार कर कहता है ठीक है भैया, दूर मत जाना बोले थे, अब दूर जा सकते हो, कोई बात नहीं है। लेकिन एक और शब्द को रखते हैं, खाली पुरुष लोग जाना, स्त्री यही रहेगा, बच्चा यही रहेगा। खाली पुरुष जो है, तुम लोग जितना पुरुष है उन लोग जाओगे चर्च में और जा करके आराधना करके आ जाना, पूरा को जाने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। उसको मालूम है अगर इसका परिवार यहाँ पर रहेगा ना, ये भागेगा नहीं, ये लौट कर आएगा यहाँ पर। इसीलिए कह रहा है आराधना तुमको करना, जाओ, तुम जो मांग रहे थे दूर, हम दूर जाने देते हैं, जाओ जितना दूर जाना, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर जाओ,
क्योंकि तुम्हारा डोरी अब हम यहाँ पर रख लिए, तुम्हारा परिवार तो मेरे पास में है यहाँ पर, तुमको घूम के तो फिर यहीं पर आना है। हालेलुया। हम कलीसिया में कभी कभी क्या करते हैं, रूटीन बनाते हैं। आज के आमी जाओ, काल के तुम्हारे नहीं जाओ, परसों आगे आगे सप्ताह तुम्हारे नहीं जाओ, इस सप्ताह मैं चल जाऊंगा, आगे सप्ताह मेरी पत्नी चल जाएगी, उसके बाद मेरी माँ चल जाएगी। हालेलुया। अटेंडेंस लगाते हैं हम चर्च में जाकर के। चलिए, जब कोरोना वायरस का था कोई बात नहीं था, अभी तो वो सिस्टम नहीं है। अभी तो आप अपने परिवार के साथ जा सकते हो परमेश्वर के भवन में। अरे घर में गेस्ट आ गया है, हम लोग निकलने वाले थे पास्टर जी, मालूम क्या हुआ, जैसे ही निकल रहे थे एक मेरा मामा का, चाचा का, भगीना का लड़का आ गया। अब घर में किसी को तो रखना होगा। हालेलुया। या फिर कभी कभी बोलते हैं नल खुलने का बहाना। जैसे निकलने वाले थे पास्टर जी, 2 दिन से पानी का नल नहीं खुला था, आज खुला भी तो चर्च का समय खुल गया। इसलिए हम बोले कि हम जाते हैं, मेरी पत्नी घर में रहेगी, कम से कम पानी भर लेगी। हालेलुया, हालेलुया। सोचिए जरा इस चीज को, शैतान कहां पर आपको मरोड़ता है, आपको तोड़ता है, आपको बांध लेता है, ताकि आप उस फेंस को, उस बाउंड्री को पार ना कर सके वहां पर। हालेलुया। आपको मालूम है एक वचन लिखा है यहोशू की किताब उसका 24:5 में क्या है, जल्दी से पढ़ेंगे। यहोशू की किताब उसका 24:5 क्या कहता है? यहोशू की किताब उसका 24 अध्याय और उसका 5 पद में क्या लिखा है? फिर मैंने मूसा और हारून को भेजकर हाँ उन सब कामों के द्वारा हाँ जो मैंने मिस्र में सॉरी किए 5 नहीं 15 और यदि यहोवा की सेवा और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो तुम किसका सेवा करोगे, यहोवा का सेवा करना है या मूर्ति का सेवा करना है? आगे कि तुम किसकी सेवा करोगे, किसकी सेवा करोगे? चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा लोग करते थे, महानदी के उस पार करते थे, और चाहे हाँ के देवताओं की सेवा करो। हाँ आगे जिनके देश में तुम रहते हो। आगे परंतु तुम अपने घराने समेत परंतु मैं तो, आप सभी कहिए परंतु मैं तो, आपके अंगीकार को परमेश्वर आशीष देगा। परंतु मैं तो अपने घराने समेत अपने परमेश्वर की आराधना करूंगा, सेवा करूंगा। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता आपका घर बचाया जाए, शैतान नहीं चाहता आपके बच्चे बचाए जाए, शैतान नहीं चाहता आप हस्बैंड वाइफ मिलकर परमेश्वर की सेवा करें। वो तोड़ना चाहता है परिवार को, वो फूट डालना चाहता है परिवार के अंदर। लेकिन यदि आप अपने घराने समेत परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं, ये परमेश्वर के लिए एक उत्तम बलिदान है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। और यही तो शैतान नहीं चाहता था, इसलिए उसने फिरौन को कहा, उसके मन में डाला, जाओ जितना किलोमीटर दूर जाना है, लेकिन अब क्या करना है, तुम्हारा बीवी बच्चा को यहीं छोड़ के जाना है तुमको। हालेलुया। ये लोग नहीं माने वहां पर, बोले नहीं, हम लोग को ऐसा नहीं करना है, अब तुम रुको, फिर तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ाते हैं हम आपको नेक्स्ट पॉइंट, निर्गमन उसका 10:24, ये लास्ट पॉइंट है। निर्गमन की किताब उसका 10:24, ये लास्ट पॉइंट है। तब फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा, तब फिरौन ने फिर से मूसा को बुलवाकर कहा, तुम लोग जाओ यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, अपने बाल बच्चों को भी ले जाओ, बीवी को भी ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। हालेलुया। लेकिन अपना गाय भेड़ बकरी सबको यहाँ पर छोड़ जाओ मेरे भाई। आपको समझ में आई बात? पहले बोला इसी देश में चढ़ाओ, उसके बाद बोला दूर मत जाना, उसके बाद बोला पुरुष लोग जाना, उसके बाद बोला अपना बीवी बच्चा को भी लेकर जाना। अब बोल रहा है जाओ सब कुछ करो, लेकिन क्या करना, अपना जो धन संपत्ति है, गाय बैल भेड़ बकरी, उसको यहीं पर छोड़ दो।
जाओ आराधना करके आ जाओ ना, क्या करना, आराधना ही तो करना है वहां जाके। हालेलुया। वहां पर मूसा कहता है हम वहां पर जाके किसको बलिदान करेंगे? मेरे परमेश्वर के लिए वहां पर बलिदान करना पड़ेगा। हम किसका बलिदान करेंगे वहां पर? यदि हम अपने गाय भैंस भेड़ बकरी को ले जाएंगे तभी तो मेरा परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाएंगे। आज शैतान ने कलीसियाओं में फिर से एक बार ग्रिप को बांध दिया है। आज लोग परमेश्वर की सेवा अपने धन संपत्ति से नहीं करते। आज क्या कारण है कि मंदिरों में देखिए बहुत सारा धन है, लोग वहां पर धन डालते हैं, अन्य जातियां वहां पर धन डालते हैं, लेकिन चर्चेस के अंदर में जब हम ऑफरिंग बैग हमारे पास में आता है, बहुत खराब लगता है बोलने के लिए। जैसे ऑफरिंग बैग पास में आता है, आप अपने पर्स को खोलते हैं और देखते हैं सबसे छोटा नोट। अभी तो मोदी जी ने 2000 का बड़ा नोट कर दिया। अगर भूल से वो नोट रह गया आपके पास तो उसकी छोटा आएगा 500, उससे छोटा आएगा 100। आप खोजते हैं उससे भी छोटा कुछ मिल जाए, 10 रुपया 5 रुपया, वो आप थैला में डालते हैं। हालेलुया। और बहुत होशियारी से डालते हैं। अगर उस थैला में आप ऊपर से डालिएगा तो आवाज करेगा नीचे जाके, इसीलिए एकदम अंदर में ढुका करके ऐसे छोड़ देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी तो लोग ऐसा पैसा डालते जो फटा हुआ 2 भाग, 20 से फटा हुआ खाली यहां पर जुड़ा हुआ है, वो परमेश्वर का हम में डाल देते हैं ले जाकर के। मेरा परमेश्वर आपका धन का भूखा नहीं है, लेकिन आपका अकाउंटेबिलिटी को, आपका जो परमेश्वर आपको अकाउंटेबिलिटी दिया है उसको देखता है खुदा बाप की आप कितना उसको निभाते हैं कि नहीं निभाते हैं। आपके धनों से आप परमेश्वर की सेवा नहीं करते हैं। यदि प्रभु को दास बोल दे आज यहाँ पर प्रभु के लिए भवन को बनाना है, आप सभी सहयोग कीजिए। वहां पर आप अपने घर में एसी फ्रिज टीवी रख लेते हैं, लेकिन यदि आप चर्च में जाते हैं वहां पर एक चेयर नहीं है बैठने के लिए और आपको पास्टर बोल दे वहां पर कि यहाँ पर चेयर की कमी है, एक चेयर मेरे भाई आप नेक्स्ट अगले रविवार आप खरीद के लेकर आइएगा। नहीं पास्टर जी बहुत प्रॉब्लम है, क्या करें, पैसा नहीं है, इस महीना बहुत हाथ ताना तानी हो रहा है। मैं आपको एक सच्चा गवाही बताना चाहता हूँ। एक बहन से मेरी बात हो रही थी। जब उस बहन से मेरी बात हुई मैंने उससे बोला, एक बहन का मैं गवाही बता रहा था उसको, सुनिए पहले ध्यान से आराम से सुनिए। एक सिस्टर है रांची में, उनका नाम है रेखा। मैंने उनको बोला था सिस्टर आप परमेश्वर के लिए 10वां अंश को निकाल करके अलग करके रखिएगा और आप ज्यादा नहीं 3 से 4 महीना परमेश्वर के लिए देखिए खुदा बाप आपका परिवार में काम करता है कि नहीं करता है। वो सिस्टर अपना एक छोटा मोटा टी स्टॉल लगाती थी वहां पर। जब वो देना शुरू की तो उनका टी स्टॉल में क्या जाने क्या हुआ, वो टी स्टॉल ठीक से चलने नहीं लगा, प्रॉब्लम्स आने लगा। वहां पर लोग आना बंद कर दिए, बगल में एक टी स्टॉल और खुल गया वहां पर। अब ये सिस्टर बोल रही है पास्टर भाई हमने तो आपके कहने के अनुसार काम किया, लेकिन जब से हम 10वां अंश भी देने लगे हैं अब क्या जाने क्या हो रहा है कि हमारे दुकान पर लोग कम आ रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने कहा सिस्टर हिम्मत मत हारिए, परमेश्वर आपके परीक्षा को ले रहा है। आपको जो काम करना आपसे कीजिए, खुदा बाप आपको आशीष करेगा, आप विश्वास कीजिए। उस सिस्टर का परिवार में उसके लड़के अलग, माँ का बात नहीं मानते, घर में पापा नहीं सिर्फ माँ है, उसकी बेटी भी अलग। वो परेशान रहती थी बहन, मेरे परिवार में शांति नहीं है। पास्टर भाई मुझे पास्टर भाई कहती है, पास्टर भाई मेरे परिवार में शांति नहीं है, शांति है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। मैंने कहा सिस्टर हिम्मत मत हारिए, आप अपना काम कीजिए, खुदा जब अपने स्वर को खोलेगा ना तब आपको समझ में आएगा कि वो आशीष कैसे देता है। अभी कुछ दिन पहले ही जब उस बहन से बात हुआ तो मुझे कह रही है कि पास्टर भाई आज मेरे बच्चे मेरी बात मानते हैं, मैं दुकान बंद रखी हूँ कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे आज काम करके मुझको संभाल रहे हैं घर में। मेरी बेटी को एक अच्छा सा एयरपोर्ट में ट्रेनिंग कर रही है, उसका जॉब भी 2 साल बाद वहां पर हो जाएगा। और आज वो परिवार रांची में एक कलीसिया में भी जा रहा है वहां पर। हालेलुया। आज उस परिवार में परमेश्वर ने अपनी शांति को डेल दिया, अपनी आशीष को डेल दिया है। क्यों? क्योंकि उस बहन ने खुदा की आज्ञा को माना और ईमानदारी के साथ उस 10वां अंश को देना शुरू किया वहां पर। अपने धन के साथ अपने परमेश्वर का सेवा करना शुरू किया वहां पर। हालेलुया। एक वचन को निकाल करके पढ़ाना चाहूंगा आपको, लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसका 1 से 4 पद में क्या कहता है।
एक गरीब विधवा के बारे में आप सभी को जानते हैं। लू का रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 1 से 4 पद। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को हाँ, अपना अपना दान भंडार में डालते फिर देखा। प्रभु यीशु मसीह ने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते हुए देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ी को डालते हुए देखा। तब उसने कहा मैं मैं यीशु मसीह तुमसे ने कहा, सच कहता हूँ मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। सबसे बढ़कर यहाँ पर परमेश्वर के भवन में डाला है। हालेलुया। क्यों डाला? क्योंकि सभी ने अपने बढ़ती में से डाला, लेकिन इसने अपनी खटी में से, अपनी पूंजी में से, अपनी जीविका में से सब कुछ अपने खुदा बाप के चरणों में लाकर रख दिया वहां पर। हालेलुया। मुझे याद है मेरे जीवन में मेरा खुद का गवाही नहीं है मेरे जीवन के बारे में। एक समय ऐसा था जब हमारे परिवार में कुछ खाने को नहीं था। मेरी माँ जाकर कुछ लाती थी, जब हम वहां पर खा रहे थे कि मेरे पिताजी ने हम लोगों को छोड़ दिया था। ये मेरा सच्चा गवाही मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन मेरा अकाउंटेबिलिटी जो मैंने अपने परमेश्वर के सामने बांध कर रखा था, मेरे पास देने के लिए धन का 10वां नहीं था, लेकिन मैंने अपने समय का 10वां अपने खुदा बाप को ईमानदारी के साथ में दिया। जिसके कारण से मेरे परमेश्वर ने मुझे उस अकाउंटेबिलिटी को, उस ईमानदारी को मेरे जीवन में वापस किया। मेरा परमेश्वर मेरे परमेश्वर के लोगों, मेरे परमेश्वर के भाई और बहनों, परमेश्वर के लोगों, खुदा बाप कभी आपके उस दे हुए चीज को खाली नहीं जाने देता है। ऐसा ना सोचे कि आप देंगे तो आपकी खटी हो जाएगी, आपकी बढ़ोतरी होगी वहां पर। हालेलुया। आपका धन वहां पर बढ़ेगा। एक लास्ट वचन पढ़ाएगा आपको, मरकुस की किताब उसका 10 का और 19 से 22 तक हम पढ़ेंगे वहां पर। ये लास्ट वचन है मरकुस की किताब उसका 10 अध्याय और उसका 19 से 22 पद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तू आज्ञाओं को तो जानता है, तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, हत्या न करना, विचार न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, हाँ? अपने पिता और अपनी माता का अपने आदर पिता करना। अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा हे गुरु इन सब को तो मैं लड़कपन से मानता इन आया हूँ। सभी आज्ञाओं को तो मैं बचपन से मानते आया हूँ प्रभु। यीशु ने उस पर बस दृष्टि रुक जाइए मेरी बहन, थैंक यू। यहाँ पर एक दृष्टांत एक धनी युवक के बारे में। ये युवक क्या है? खुदा बाप यीशु के पीछे चलना चाहता है। बोलता है प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, मैं तेरा शिष्य बनना चाहता हूँ, मैं तेरा चेला बनना चाहता हूँ। प्रभु यीशु कहता है तुझे आज्ञाओं का पालन करना होगा। तब ये कहता है प्रभु मैं तो सारी आज्ञाओं का पालन बचपन से करता आया। मैंने व्यभिचार नहीं किया, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने चोरी नहीं की, मैं अपने माता पिता का आज्ञा को मानता हूँ। सब कुछ ये वहां पर खुदा बाप के सामने में गिरा रहा है। और तब आगे प्रभु यीशु उससे क्या कहता है? उससे कहा हे गुरु इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हे गुरु इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके तब प्रभु यीशु मसीह अपनी दृष्टि को उस युवक के ऊपर में करता है, उससे प्रेम किया। और बाइबल कहती है खुदा बाप यीशु ने उससे प्रेम किया। इसलिए प्रेम किया, रुक जाइए, इसलिए प्रेम किया क्योंकि यीशु जान गया इसने जितनी बातों को यहाँ पर कहा है सचमुच इसके जीवन में ये सारी आज्ञाओं का पालन करता आया है। इसलिए खुदा बाप ने उससे प्रेम किया और कोई कारण नहीं था प्रेम करने का वहां पर। अगर ऐसा होता तो प्रभु यीशु मसीह को बोल देता अरे तू तो झूठ बोलता है, तूने तो ये व्यभिचार किया, तूने तो ये चोरी किया, मैं तेरे बारे जानता हूँ। लेकिन ये बाइबल कहती है खुदा बाप ने उससे प्रेम किया। हालेलुया। वो जान गया कि इसने सारी आज्ञाओं का पालन किया है। तब वहां पर यीशु खुदा बाप एक बात को कहता है, आगे बढ़िएगा। प्रेम किया और उससे कहा तुझ में एक बात की घटी है, तुझ में सिर्फ एक बात की घटी है। जा जो कुछ तेरा है हालेलुया। उसे बेचकर कंगालों को दे। जा जो कुछ तेरा है उसको बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और तुझे स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा। और आकर मेरे पीछे हो ले। और आकर मेरे पीछे हो ले। वहाँ पर बाइबल आगे कहती, बस इतना पढ़िएगा। बाइबल में आगे लिखा है वो युवक जो था वो उदास हो गया, उसका चेहरा उतर गया, मानो प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ा सा पत्थर उसके हृदय के ऊपर लाकर रख दिया हो वहां पर।
हालेलुया। यीशु कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं, एक धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। क्योंकि बाइबल कहती है जहां तेरा धन होता है वहीं तेरा मन लगा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, बाइबल कहती है इस संसार के धन से अपने लिए स्वर्ग के राज्य में मित्र को मोल लो। ये धन यहीं पर रहेगा, सड़ेगा, गलेगा, कीड़ा लग जाएगा, खाएगा। आप घर बना के जाएंगे, गाड़ी, आप कुछ लेके नहीं जा सकते यहाँ से। केवल मात्र आप परमेश्वर के उस आशीष को, उस अनुग्रह को अपने साथ इस जीवन में उस स्वर्ग के राज्य में लेकर जा सकते हैं। स्वर्ग में अपने धन को इकट्ठा कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, खुदा बाप आपसे बात कर रहा है और शैतान यही चाहता है, आपको धन में फंसा देना चाहता है। अरे क्या दरकार है जज में देने का भैया, मत दो, पास्टर के पास तो ऐसा ही है वहां पर। उसको मालूम नहीं कि प्रभु दास कहां कहां से किन को सहायता करता है, क्या क्या चीजें वहां पर करता है। लोग यीशु मसीह के लिए देना नहीं सीखते, इसीलिए आशीष नहीं पाते हैं। वहां पर शैतान उनको बांध कर रख देता है। ईमानदारी से दशमांश 8,000 कमाते हैं, अगर उनका ईमानदारी से दशमांश बनता 800 रुपया, वो चर्च में 800 क्या 200 रुपए लेकर जाके डालते हैं दशमांश के नाम पर वहां पर। तो प्रभु भी आपको वैसे ही देगा जैसे आपने उसको दिया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर फिरौन कहता है जा, लेकिन अपना गाय, बैल, भेड़, बकरी को यहीं छोड़ के जा, तेरा धन यहीं पर रहेगा, और जहाँ तेरा धन रहेगा वहां तेरा मन लगा हुआ रहेगा, तू लौट के तो यहीं पर आएगा मेरे भाई। हालेलुया। फिरौन को मालूम था कहां पर बटन दबाने से ये लोग घूम के यहाँ पर आ गए। शैतान जानता है आगे सभी चीजों। आज मैंने आपको इसीलिए इन चीजों के बारे कहा। वर्शिप इन इजिप्ट, एक बंधुआई का जगह जहां परमेश्वर आपसे आराधना नहीं करवा सकता है, एक बंधन का स्थान जहां पर परमेश्वर का आराधना, आपका आराधना परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता है। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को ढूंढता है। आत्मा जहां रहती है वहां स्वतंत्रता होता है, आजादी होती है। खुदा बाप आपको आजाद करना चाहता है इन सभी चीजों से। खुदा बाप आपको आजाद करना चाहता है इन सभी चीजों से। मेरे परमेश्वर के लोगों, उस इजिप्ट से अपने आप को निकालिए, परमेश्वर के करीब में आइए, अपने परिवार के साथ परमेश्वर की आराधना कीजिए। केवल पुरुष नहीं, पूरा घराना परमेश्वर की आराधना कीजिए। अपने धन संपत्ति के साथ परमेश्वर की आराधना कीजिए। परमेश्वर के शैतान से दूरी बनाइए और परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता को बनाइए। मेरा प्रभु बहुत जल्द आने वाला है। ना जाने ये 2021 यदि हम उस खुदा बाप के आगमन को देख लें, या तो मृत्यु या तो खुदा बाप का आगमन, इन दोनों चीजों में से कोई भी एक आपके जीवन में 100% कभी भी आ सकता है। बी रेडी, तैयार हो जाए मेरे परमेश्वर के लोगों। आइए हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बात किया है। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर की आत्मा ने आपको स्पर्श किया है आज वचन के द्वारा। आज आप गहराई में उतरिए परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप के। आपके प्रभु परिवार को परमेश्वर ने बहुत आशीष किया, मेरी बहन वो और भी करना चाहता है। थैंक यू जीसस। हम अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे उस खुदा बाप के सामने। Thank you, Jesus. Thank you, mighty Lord. मेरे पिता ढूंढू तुझे, Lord, hallelujah. तू कहाँ है Praise the Lord, hallelujah. मेरे पिता ढूंढू
मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन को टटोल रही है। बाइबल कहती है, जब तुम उस खुदा बाप का शब्द सुनो, अपने हृदय को कठोर ना करो। आज यीशु द्वार पर खड़ा और खटखटा रहा है। खोल दीजिए, वो खुदा बाप को आने दीजिए आपके परिवार में, आपके जीवन में। हालेलुया, माय लॉर्ड। रियाम थेरवा शिखन थेरवे रिया बराबरा, स्तुति रियाम थेरवा रिया शंतरी रिया बराबरा। हालेलुया। इस वक्त मैं प्रार्थना कर रहा हूं खुदा बाप के नाम से, यदि कोई बीमार है, आज परमेश्वर की सामर्थ चंगाई यीशु मसीह के नाम से उसके जीवन को छूने पाए। टच इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, यस लॉर्ड। यदि कोई बंधन में है, दुष्ट आत्मा में पड़े हैं, आजादी, छुटकारा यीशु के नाम से मिलने जा रहा है। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते पिता। प्रभु जी, जितने लोग जुड़े हैं और जितने लोग आगे में इस वचन को और आराधना को देखे प्रभु जी, उन सबों के जीवन को आशीष से भर दीजिए खुदा बाप। हम धन्यवाद करते हैं तेरे बेटे के लिए प्रभु जी, जिन्होंने आज आराधना में हमारी अगुवाई की परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इस परिवार, इस कुटुंब को, इस घर को अपने आत्मिक आशीष से लबनोन करते परमेश्वर पिता। थैंक यू माय जीसस। ब्लेस एवरीवन, हर एक को आशीष कर खुदा बाप के नाम से। थैंक यू डैडी, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम और पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ, हर एक पवित्र जन के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक और इस दुनिया के अंत तक बनी रहे। सारे बोले आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत की आशीष दे। हम फिर से अगले रविवार मिलेंगे स्टेज पे ठीक शाम 6 बजे। तब तक परमेश्वर आपको बहुत की आशीष दे। जय मसीह।